باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے. ہمارے درمیان محمد صاحب وہ اس کی تلاوت کریں گے سامنے آ کر, اور خداوند کے کلام مقدس میں سے رومیو 12 باب اور اس کی پہلی آیت سے. مسیح میں سب کو اسلام. خداوند کے پاک کلام میں یوں مکتوب ہے, بس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. خدا کے پاک کلام کے پڑھے ہوئے سورۃ جامع پر خدا کی خاص آمین. تھینک یو. آئے سب بولیں گے آمین. میرے عزیزوں, آئے آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے ابھی ہم نے رومیو کے نام جو ہے وہ پولس رسول کا خط پڑھا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری مقبول عبادت کیا ہے, وہ کیسی عبادت ہے جسے خدا پسند کرتا ہے, وہ کون سی عبادت ہے جو خدا کی حضوری میں مقبول ہے. ہاللویا. اور ابھی ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھا کہ اپنے جو بدن ہے ان کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو کیا ہے, پسندیدہ ہے. ہاللویا. میرے عزیزوں, یہ کلام جو ہے یہ نہ صرف جو ہے وہ دنیا کے جو اور لوگ ہیں یا پھر دنیا کی وہ جو مخلوقات ہیں جن کے اندر جانور بھی آتے ہیں, جن کے اندر پرندے بھی آتے ہیں, بلکہ یہ کلام جو ہے وہ آج ہمارے لیے ہے. اور رومیو کی کلیسیا کے اندر یہ مسائل تھے. وہ اپنی عبادات کو جو ہے وہ ٹھیک طور پر نہیں گزارتے, تو تب خداوند کا کلام جو ہے وہ پولس رسول کے ذریعے جو ہے وہ ان پر نازل ہوتا ہے کہ اپنی ایسی عبادت یا ایسی پاک اور پسندیدہ قربانی جو خدا کی حضوری میں کیا ہے, مقبول ہے, ایسی قربانی گزارو. ہاللویا. اور اس میں 4 پوائنٹس ہیں, آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. 4 پوائنٹس ہیں, آپ ضرور جو بیٹے بیٹیاں جو پڑھے لکھے ہیں وہ ضرور ان کو لکھیں, کوٹ کریں, تاکہ آپ لوگ ان حوالے جات کو اور آپ لوگ اس کلام کو یاد رکھ سکیں. اس میں 4 باتیں سیکھیں گے. میرے عزیزوں, آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی عبادت کو کیسے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرا سکتے ہیں. ہاللویا. آج کیسے اگر ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, تو کیسے یہ خدا کو پسند آئے گا, کیسے یہ مقبول عبادت ہے. تو پہلا پوائنٹ اس میں ہمیں خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کرنا. ہاللویا. خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کرنا, یہ پہلا پوائنٹ ہے. آپ اس کو یاد رکھیں. جب آپ گھر میں بھی عبادت کرتے ہیں, جب آپ کسی جگہ کنونشن پر جاتے ہیں, جب آپ پرستش کرتے ہیں, اور جب آپ چرچ میں آتے ہیں یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں, تو سب سے پہلا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ پرستش کا. ہاللویا. پہلا حصہ جو ہے وہ ورشپ کا ہے, وہ پرستش کا ہے. جب آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو
सबसे पहले क्या करें, उसकी प्रस्तुति करें, उसकी बंदो सलाम करें, उसके नाम को जलाल दें। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग जो हैं वो इबादत को प्रस्तुति का हिस्सा नहीं समझते। वो सोचते हैं कि चले प्रस्तुति गुजर जाए तो फिर मैं चर्च में जाऊंगा। शायद आप भी ना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि प्रस्तुति का हिस्सा जो है वो जब गुजरेगा तो फिर हम चर्च में जाएंगे। शोर बड़ा होता है, लोग तालियां बजाते हैं, वैसे ही इरिटेट होते रहते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि अगर हम अपनी मकबूल इबादत चाहते हैं, अगर हम ऐसी इबादत गुजारना चाहते हैं जो खुदा को पसंदीदा है, तो उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। दिल के साथ उसके गीत गाएं, उसके नाम को जलाल दें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को जलाल दें। और किस तरह लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि तुम तालियां बजाकर उसकी हम्द करो। तो उसके लिए तब बजाओ, उसके लिए तबले बजाओ, उसके लिए बांसुरी बजाओ, उसके लिए गीत गाओ और गीत गाते हुए उसकी इबादत करो। और ज़बूर 100 में लिखा है कि तुम खुशी के साथ उसकी इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में दाखिल हो। हालेलुया। ये आपकी मकबूल इबादत है, ये आपकी ऐसी इबादत है जिसे खुदा क्या करता है, पसंद करता है। और मैंने एक जगह पर एक बात को बताया, लोगों ने इस बात से बड़ी बरकत पाई, और वो बात थी कि स्टार्टिंग में दुनिया बनने से पहले कौन खुदा की प्रस्तुति करता था। तो ये क्वेश्चन मेरा भाइयों से है कि दुनिया शुरू होने से पहले, बनाने से पहले कौन खुदा की प्रस्तुति करता था? जी हाँ जी, फरिश्ते और बिल्कुल फरिश्ते करते हैं। और लूसीफर, दैट्स गुड। लूसीफर जो है वो खुदा की प्रस्तुति करता, वो हम्द के गीत गाता। और लिखा है कि सुबह के सितारे, क्यों तेरे दिल में घुमंड आया, क्यों तुझे आसमान से पटक दिया गया। और वो आज जगह क्या है, खाली है। वो आज जगह क्या है, खाली है। और आज वो जगह किन के पास है, बताएं जरा। जो आज उसकी क्या करते हैं, प्रस्तुति करते हैं। हालेलुया। तो आए प्रस्तुति करने वालों के लिए भी जोरदार तालियां। जो उसकी प्रस्तुति करते हैं, जो उसके गीत गाते हैं, जो उसकी हम्द करते हैं, आज खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। खुदा आज ऐसे लोगों को जो सांस बजाते हैं, जो गीत गाते हैं, जो प्रस्तुति करते हैं, खुदा उनको पसंद करता है। और जब प्रस्तुति करते हैं तो लिखा है कि खुदा हमारा क्या होता है, तख्त नशीन होता है। हालेलुया। जब प्रस्तुति होती है तो खुदा तख्त नशीन होता है, और जब खुदा का तख्त लग जाता है तो खुदा फिर अपने कलाम के जरिए क्या करता है, अपनी आवाज को बयान करता है। हालेलुया। तो पहली बात हमारी मकबूल इबादत, इसलिए प्रस्तुति से इरिटेट ना बल्कि बरकत को रिसीव करें। मैंने देखा कि कुछ लोग प्रस्तुति के दरमियान वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, या कुछ लोग शर्माते हैं, वो तालियां बजाते, वो गीत गाते, सांस बजाते, वो शर्माते हैं और वो महसूस करते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, या मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूं। नहीं मेरे अजीजों,
बाइबल मुकद्दस में हर हवाला लिखा है कि तुम क्या करो, 10 तार वाले साज के साथ तुम बरकत और पीर के साथ अपने खुदा की प्रस्तुति करो। हालेलुया। तो फिर आपकी क्या होगी? मकबूल इबादत होगी। ये पहला पॉइंट कि फिर आपकी क्या होगी? मकबूल इबादत। जब आप घर में भी दुआ का आगाज करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रस्तुति करें, उसकी हमद के गीत गाएं। और फिर आगे दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है दिल से इल्तिजा करना। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट है कि दिल से दुआ करना, दुआ और इल्तिजा करना। जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, आपने परस्तिश की है, आपने तालियां बजाकर अपने खुदा को खुश किया है, आपने गीत गाकर, आपने नाच कर, झूम कर अपने खुदा को खुश किया है। तो लिखा है अगली बात क्या है कि फिर पूरे दिल के साथ क्या करना? उससे दुआ और इल्तिजा करना। हालेलुया। पूरे दिल के साथ उसके सामने इल्तिजा करना। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमाल 12 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि हेरोदेस ने क्या किया? कलीसिया पर हाथ डाला, कलीसिया को पकड़ा। लिखा है कि उनके लीडर को, वो जो जिसका नाम पतरस था, उसको कैद खाना के अंदर डाल दिया, उसको कैद में गिरफ्तार किया और लिखा है कि यकूब को कत्ल कर दिया। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि यहाँ पर एक बड़ा वाकया दरपेश आता है। पतरस क्या है? कैद खाना के अंदर है। पतरस जो है वो बेड़ियों के अंदर है। पतरस को जो है उसके हाथ और पांव पर जो है वो बेड़ियां लगी है और वो कैद खाना के अंदर है। और लिखा है कि उसकी चारों तरफ सिपाहियों ने उसको घेरा हुआ है। और लिखा है कि वो अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर वो दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। वो अंदर दुआ कर रहे हैं, वो खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं, वो खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, वो खुदा के आगे इल्तिजा कर रहा है। और लिखा है कि जब वो जो है वो दुआ कर रहा है, और लिखा है कि ना सिर्फ वो दुआ कर रहा है बल्कि कलीसिया दिलो जान से उसके लिए दुआ कर रही है। हालेलुया। कलीसिया अपने लीडर के लिए, अपने पासबान के लिए, अपने खादम के लिए वो दुआ कर रही है। और लिखा है कि पतरस तो कैद खाना के अंदर था, लेकिन कलीसिया दिलो जान से दुआ कर रही है। हालेलुया। कलीसिया दुआ कर रही है। आज अपनी दुआया जिंदगी पर गौर करें। कितने हैं जो अपने पास्टर के लिए, अपने पासबान के लिए दुआ करते हैं? चर्च बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज भाई, आज अपने आप को देखें। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब कलीसिया जो है वो दिलो जान से वो दुआ कर रही है और खुदा की हमद के गीत गा रही है। और लिखा है कि वो दुआ कर रहे हैं अपने लीडर के लिए, वो इंतजार कर रहे हैं अपने पासबान के लिए। तो लिखा है कि वो जिस तरह दुआ करते रहे, वो इंतजार करते रहे। तो लिखा है कि यकायक एक फरिश्ता आया और कैद खाना के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। कैद खाना के दरवाजे खुल गए और पतरस वहां से आजाद। हालेलुया। तो ये है आपकी मकबूल इबादत।
یہ ہے آپ کی مقبول عبادت۔ لکھا ہے اے بھائیوں اپنے بدنوں کو تم اس طرح تیار کرو، اپنے آپ کو خدا کے لیے اس طرح تیار کرو، اور کیا کرو؟ پاک ہو، قربانی دو، تاکہ جیسی عبادت خدا کو پسند ہے تو اس کو پسند آئے۔ ہاللیلویہ، اس کی حضوری میں پہنچے۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ گیت گا کر خوش ہو جاتے ہیں، کہتے سب گیت گانے ہیں، وہ گیت گاتے ہیں مزاج ہو کے چلو جی بس دعائیا زندگی کچھ نہیں ہے۔ لاسٹ میں 2021 کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنی ٹیم نے اس بات کو ٹھہرایا ہے، جتنے ورشپ کرنے والے ہیں، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم نے اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، اپنی اسپرچل حالت کو بہتر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس گیت گایا اور یہی کہتے ہیں کہ بس خدمت ہو رہی ہے، نہیں، آپ کی مقبول عبادت ہو جس میں آپ کو دعا کرنی آنی چاہیے، آپ کو پرستش کے ساتھ جو ہے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہونا چاہیے، پھر آپ کی کیا ہوگی؟ مقبول عبادت ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے تیسری بات، اس کے بعد کیا کرنا؟ جب پرستش ہو گئی ہے، دعائیں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے کلام کو سننا ہے۔ ہاللیلویہ، ہم نے پھر کلام کو بھی سننا ہے۔ یہ نہیں کہ کلام کی باری آئی ہے تو ٹائم دیکھا چلو جی اٹھ کھڑے ہو گئے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ پرستش میں شامل نہیں ہوتے، کچھ لوگ تو کلام کے وقت اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا پادشاہ صاحب نے کہہ دیتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مقبول عبادت ہو تو کلام کو بھی سننا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے لیے حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبور 119 اس کی 105 ہے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس کو یاد ہو زبانی تو بتا سکتا ہے، بڑی مشہور ہے زبور 119 اس کی 105 ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ ہاللیلویہ، اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اندھیرا ہوتا ہے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی امید ہمارے نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، پھر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، پھر اندھیرا میں ہے، پھر ابلیس کی غلامی میں ہے، پھر ابلیس کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ زندگی میں اندھیرا ہے، زندگی کلام سے دور ہے، کلام نہیں ہے زندگی میں۔ کلام کی باری تو اٹھ کر چلے گئے، یا کلام کی باری تو ہمارا دھیان ہی کہیں اور تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلام کی باری دھیان ہی ادھر کا کرتے ہیں، نظریں گھومتی ہوتی ہیں، سوچے کہیں اور ہے، میرے گھر میں گیسٹ آنے ہیں، میرے گھر میں مہمان آنے ہیں، یا میں نے ابھی ڈیوٹی پہ جانا ہے، میرے پاس تو بڑا کام ہے، یہ مہینہ تو میرے لیے مشکلات کا ہے، اس مہینے میں نے تو بل نہیں دیا، میں نے تو کرایہ نہیں دیا، اس ماہ میں جو ہے وہ بڑا خرچہ ہو گیا ہے۔ کلام کی باری آئی ہے تو ذہن سوچوں میں گھما ہوا ہے، فکروں میں گھما ہوا ہے، بیٹھے نہیں ہیں، جسم موجود ہے لیکن خود یہاں پر نہیں ہے۔ تو وہ اکثر رات کو بات ہوتی تھی کہ پاس صاحب آپ ایک شعر بڑا کہتے ہیں کہ رب تو رہتا ہے میری 400، رب تو رہتا ہے میری 400، میں ہی کہیں گم رہتا ہوں۔ تو خدا جو ہے وہ تو ہماری چاروں طرف ہے، اسے ہماری فکر ہے، اسے ہمارے کھانے کی، ہمارے پینے کی، ہمارے گھر کی، ہمارے اولاد کی بھی فکر ہے، اور لکھا ہے اپنی فکریں مجھ پر چھوڑ دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اسی
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 5 साल को क्या पता है कि मुश्किलात क्या है। मेरे अजीजों, खुदा जानता है, वो कहता है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, क्या कर अपनी फिक्रे मुझ पर डाल दे। और हम क्या कहते हैं, खुदा हमने अपनी फिक्रे अपने पास रखनी है, हमने अपने पास रखनी है। हाँ जी, कितने हैं जो यहाँ पर अपनी फिक्रे खुदा पर डाल देते हैं। हाँ जी, बड़े डॉक्टर के हाथ चुके कहते हैं चर्च बैठे हो की कहिए। माय गॉड, मेरे अजीजों, खुदा जानता है, खुदा आपके दिलों और गुर्दों को भी जानता है। आप चाहे ना शेयर करें, लेकिन उसको पता है वो हमसे ज्यादा हमको जानता है। वो हमसे ज्यादा लिखा है कि मैंने तेरी सूरत जो है वो अपनी हथेली पर खोद रखी है। मेरे अजीजों, आप तो अपनी फिक्रे उसको नहीं देते, लेकिन वो कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने अपनी हथेली पर तेरी सूरत को खोद रखा है। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। मेरे अजीजों, आए आज कलाम के साथ अपना दिल लगाएं। उसका कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, उसका कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है। लेकिन जब हम दुनिया पे भरोसा रखते हैं तो फिर क्या खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, सारी जिंदगी गिरते रहते हैं। बाल चिट्टे हो जाते हैं फिर भी नहीं समझ आता, बाल सफेद हो गए हैं फिर भी नहीं समझ आई, फिर भी जिंदगी अंधेरे के अंदर है, फिर भी जिंदगी खुदा से दूर है। हमने तौबा भी की, निजात याफ्ता भी हुए, हमने बपतिस्मा भी लिया, लेकिन फिर भी जिंदगी अंधेरे में है, फिर भी जिंदगी अंधेरे में है। आए आज अपने आप को देखिए, कितने हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। शुक्रवार तो मैंने नहीं बताया किस किस ने। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आए आज अपने आप को देखें, आए आज अपने आप को देखें। और आगे चौथी बात, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बहुत मुश्किल है। चौथी बात है कि अपने हदिये जान खुदा के सामने पेश करना। हालेलुया। अपने हदिये जान, अपने नजराने, अपनी तैलकी खुदा की हजूरी में नजर करना। जब हम परस्तिश भी करते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, हम कलाम भी सुनते हैं, लेकिन हदिये की बारी सबसे छोटा नोट पॉकेट में से टूट के, सिक्का टूट कर वो हम खुदा को दे देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, ये भी सुन लें। उसके बाद हम दूसरों से मांगते हैं, हम कहते हैं कोई मेरी जरूरत पूरी कर दे, मेरे हालात खराब हैं, मेरे हालात क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, मेरे ऊपर तो कर्जा है, मेरे हालात तो खराब है, मेरे घर में तो खुराक नहीं है, मेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं है। मेरे अजीजों, लिखा है कि तुम जो है वो जिस पैमाने से तुम क्या करोगे, नापोगे, तुम्हारे लिए भी उतना ही नापा जाएगा। तुम जितना बीज बोओगे तुम उतनी ही फसल काटोगे, उतनी ही फसल तुम्हारे लिए होगी। लेकिन हम खुदा से तवक्को ज्यादा रखते हैं, खुदा से तवक्को ज्यादा रखते हैं। कभी देखें कि अगर एक शख्स है
आप उस पर तवक्को रख रहे हैं तो वो भी तो आपसे कोई तवक्को रखता है ना। ऐसे ही है, अगर जॉब है, जॉब की मिसाल देता हूं, अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो ओनर जो है उसको पता है कि ये मेरा ऑफिस जो है ये सारा इसके हैंडओवर है और वो आप पे तवक्को रख रहा है कि ये इसने करना है, ये इसका काम है, लेकिन आप भी उससे तवक्को रख रहे हैं कि मैंने महीने के बाद क्या लेनी है, सैलरी लेनी है, मैंने उससे पैसे लेने हैं। मेरे अजीजों, आए यहाँ पर देखें, हम खुदा से तवक्को तो रखते हैं, अगर हम बीमार हो जाएं तब हम खुदा से शिकवा करते हैं, अगर हमारे हालात खराब हो जाएं तब हम खुदा से शिकवा करते हैं, अगर कोई हमारा अजीज इस दुनिया से चला जाए तब कहते हैं खुदा तू मारे आगे, तूने ऐसा किया है, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। हम खुदा से तवक्को रखते हैं, हम खुदा से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है? हम सबसे छोटा नोट खुदा के सामने पेश करते हैं। और इवन के हर माँ के बाद कितने हैं, आप देख रहे हैं, सवाल कितने हैं जो अपनी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी लायकी खुदा की रसूली में नजर करते हैं, पूरी लायकी। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपने 2,000 बड़ी ईमानदारी के बाद जो है वो खुदा को पेश किया, आपने अपने पास माँ को कॉल की और कहा कि ये मेरी लायकी है, तो मेरे अजीजों कैसे हमारी मकबूल इबादत होगी? प्रस्तिश करके खुश हो जाते हैं कि बाबा से प्रस्तिश कर रहे हैं, कलाम सुना के खुश हो जाते हैं कि हमें कलाम सुनाना आता है या कलाम सुनना आता है, या दुआएं करके खुश हो जाते हैं, लेकिन हमने आसमान को अपने लिए बंद किया हुआ है। मेरे अजीजों याद रखें, मैंने लास्ट में एक जगह बता रहा था कि जब आपकी दुआ से जो है, दुआ से आपकी बीमारियां जाती हैं, दुआ से आपकी जो है वो बदरूहें भागती हैं, दुआ से जो है वो कमजोरियां भागती हैं, लेकिन देने से क्राइसिस खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। देने से हालात बेहतर हो जाते हैं। ये जो लोग देते नहीं हैं वो सोच लें, आज वो सोच लें कि उनके हालात क्यों खराब हैं। आप यकीन माने, मैंने देखा है अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कि वो हालातों से मुसीबत उठा लेंगे, वो अबलीस से मुसीबत उठा लेंगे, लेकिन खुदा की हुजूरी में अपने हदिये जान पेश नहीं करेंगे। अपने लिए महंगे कपड़े, महंगे सूट, कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल, एवरीथिंग, शॉपिंग अच्छी अच्छी जगह से, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो हम मासूम हो जाते हैं, अगर है ही नहीं। मुझे याद एक पादी साहब एक घर गए और उन्होंने दुआ की तो उन्होंने 10 रुपए हदिया निकाल कर उस पासा साहब को दिया, और जब उस पासा साहब को दिया तो उन्होंने, उनका बच्चा जो है वो रो रहा था, कह रहा था कि अम्मी मैंने भी पैसे दे, और पासा साहब देख रहे हैं कि बच्चा कब से रो रहा है, तो उन्होंने 10 रुपए निकाल कर पासा साहब को हदिया दे दिया, और पासा साहब देख रहे थे कि बच्चा रो ही जा रहा है। पासा साहब ने क्या किया, वही 10 रुपए जो है उस बच्चे को दे दिए, और उसकी माँ ने कहा कि नहीं पादी साहब रखो तुसी कोल, ये 10 रुपए नहीं लेता है, ये 100 तो 50 तो थले गल नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमारा मेंटल लेवल है कि हम खुदा को 10 रुपए देकर हम हजारों बरकतों की तवक्को रखते हैं, हम औलाद की तरक्की चाहते हैं, हम अपना कैरियर मांगते हैं, हम अपनी जॉब मांगते हैं, हम अपना
10 रुपए दे दिए। मेरे अजीजों, आज लिखा है कि तुम नहीं बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा है, और तुम कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा है? क्या कोई खुदा को ठग सकता है? खुदा कहता है, हाँ तुमने मुझे ठगा है, कैद की और हदिये में तुम मुझे ठगते हो। मेरे अजीजों, देखिए, याद रखिए, खुदा का काम है ये हमेशा चलता रहेगा। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बड़े कठिन हालातों को देखा, लेकिन फिर भी खुदा ने ब्लेस किया, बरकत दी, खुदा दे भी रहा। आप जो हैं कभी निजाम को देखिए, अगर आप लोग एक कलीसिया होकर, ठीक है, जैसे यूथ है, बुजुर्ग हैं, पास्टर से बात है, कभी आप देखें कि आपके चर्च को किन किन चीजों की जरूरत है, कौन सी ऐसी जरूरत है, कौन सी ऐसी नीड है आपके चर्च में कि जो आपको नजर आती है। आपके पास साथ नहीं आपको कह पाते, लेकिन आप खुद इन चीजों को देखें। मेरे अजीजों, वो पैसा जो आप देंगे वो चर्च पर लगेगा, हालेलुया, वो कलीसिया पर लगेगा, वो आपके प्रोग्राम पर लगेगा। हो सकता है बहुत से प्रोग्राम जो है वो हम फाइनेंशियली तौर पर पैसों की वजह से हम ना कर पाते हैं। हो सकता है कि हम मीटिंग के अंदर, यूथ के अंदर हम बहुत से रिफ्रेशमेंट करना चाहते हो, लेकिन हम नहीं कर पाते। हो सकता है कि चर्च के अंदर बहुत सी चीजें लानी हो, हम नहीं कर पाते। जैसे यूपीएस लाइट नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन याद रखें, लिखा है कि अगर तुम अपनी मुट्ठी को बंद रखोगे तो आगे से भी खुदा की मुट्ठी भी आपके लिए बंद रहेगी। याद रखें। और एक आखिरी बात ये जरूर करूंगा, खुदा को जब लेना है तो इसके लिए आपकी पॉकेट मायने नहीं रखती। क्या आपकी पॉकेट बड़ी है, छोटी है, आपका बिजनेस बड़ा है, छोटा है, आपका दिल मायने रखता है। क्या आपका दिल बड़ा है या नहीं है? सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।